Good morning, students. Today I will further continue the third chapter of civics. Working of the government. इसके बारे में हम लोग लास्ट पीरियड में पढ़ रहे थे कि शासन की कार्यप्रणाली क्या होती है। उसी में आगे हम लोग शुरू करते हैं। The government can also decide to make new laws for the state regarding sanitation and health facilities. सरकार सफाई और स्वास्थ्य सेवाओं के लिए नए कानून बनाने का भी निर्णय ले सकती है। फॉर एग्जाम्पल, इट मे मेक it compulsory for municipal corporations to ensure that there are adequate toilet in every urban area. उदाहरण के लिए वह कानून बनाकर हर नगर निगम के लिए यह अनिवार्य कर सकती है कि शहरी क्षेत्रों में पर्याप्त शौचालयों की व्यवस्था हो। It may also ensure that a health worker is appointed in every village. यह भी सुनिश्चित किया जा सकता है कि हर गांव में एक स्वास्थ्य कर्मी की नियुक्ति हो। This act of making laws on certain issues is done in the legislative assembly of each state. किसी विषय पर कानून बनाने का यह कार्य प्रत्येक राज्य की विधानसभा द्वारा किया जाता है। The various government departments then implement these laws. इसके पश्चात विभिन्न शासकीय विभाग इन कानूनों का क्रियान्वयन करते हैं। Laws for the entire country are made in the parliament. पूरे देश के लिए कानून संसद में बनाए जाते हैं। यू विल रीड मोर अबाउट द पार्लियामेंट नेक्स्ट ईयर। संसद के बारे में आप अगले वर्ष पढ़ेंगे। इन अ डेमोक्रेसी it is the people who elect their representatives as members of the legislative assembly, MLAs, and thus it is the people who have the main authority. लोकतंत्र में विधायकों यानी एमएलए के रूप में जनता अपने प्रतिनिधि चुनती है और इस तरह शासन मुख्यतः जनता का ही होता है। The ruling party members then form the government and some members are appointed minister. फिर सत्ता पक्ष के सदस्य सरकार बनाते हैं और कुछ सदस्यों को मंत्री बनाया जाता है। These ministers are in charge of various departments of the government such as health in the above example. ये मंत्री सरकार के विभिन्न विभागों के प्रभारी होते हैं, जैसे ऊपर दिए गए उदाहरण में स्वास्थ्य विभाग। Whatever work is done by these departments has to be
approved by the members of Legislative Assembly. इन विभागों द्वारा जो भी कार्य किया जाता है उसे विधायिका द्वारा अनुमोदित या स्वीकृत कराया जाता है। A wallpaper project. वॉलपेपर की परियोजना। A wallpaper is an interesting activity through which research can be done on particular topics of interest. वॉलपेपर एक मजेदार गतिविधि है जिसके माध्यम से रुचि के किसी विषय पर शोध किया जा सकता है। The following photographs explain the different aspects involved in creating a wallpaper in a classroom. यहाँ जो तस्वीरें दी गई हैं वे कक्षा में वॉलपेपर बनाने के विभिन्न पहलुओं को प्रस्तुत करती हैं। After introducing the topic and giving a brief discussion with the whole class, the teacher divides the class into groups. शिक्षिका चुने गए विषय का पूरी कक्षा को परिचय देती है और संक्षिप्त चर्चा करके कक्षा को कुछ समूहों में बांट देती है। The group discuss the issue and decide what is would like to include in the wallpaper. समूह उस मुद्दे पर चर्चा करता है और तय करता है कि वॉलपेपर में क्या क्या रखना चाहेगा। Children then work individually or in pairs to read the collected material and write their observation of experiences. They can do this through creating stories, poems, case studies, etc. इसके बाद बच्चे अपने आप या दो दो की जोड़ों में इकट्ठे हो गए सामग्री को पढ़ते हैं और अपने अनुभवों और विचारों को लिखते हैं। इसके लिए वे कविताओं, कहानियों, साक्षात्कारों, विवरणों आदि की रचना कर सकते हैं। The group looks at the material that they have selected, draws or written. They read each other's writing and provide feedback to the other. They make discussion on what should be included and finalize the layout for the wallpaper.
जो भी सामग्री चुनी गई है या बनाई गई या लिखी गई, उसे समूह के लोग मिलकर देख लेते हैं। वे एक दूसरे के लिखे हुए को पढ़ते हैं और अपने सुझाव देते हैं। वे मिलकर यह भी तय करते हैं कि वॉलपेपर में क्या क्या जाएगा और फिर उसका लेआउट बनाते हैं। Each group present the wallpaper to the entire class। और इसके बाद प्रत्येक समूह अपना वॉलपेपर पूरी कक्षा के सामने प्रस्तुत करता है। It is important that more than one member of the group is asked to present and that each group is allotted the same amount of time to discuss their work। यह महत्वपूर्ण है कि समूह के एक से अधिक सदस्य को प्रस्तुत करने को कहा जाए और सभी समूहों को अपना काम बताने के लिए बराबर का समय मिले। After each group has presented, it would be a good idea to have a feedback session on the following: what more could they do and their own, how could their work be again better, how could writing and presentation to improved upon। जब सभी समूह अपना प्रस्तुतिकरण कर लेते हैं तो समीक्षा के लिए ऐसे प्रश्न पूछना अच्छा रहता है। अपने आप वे और क्या क्या कर सकते हैं, क्या करने से उनका काम और ज़्यादा व्यवस्थित हो जाता है। लेखन और प्रस्तुतिकरण में सुधार के लिए क्या किया जा सकता है। अब इसकी हम लोग जरा ग्लोसरी देखेंगे। ग्लोसरी यानी शब्दावली या यूं कहें कि शब्द संकलन। कॉन्स्टिट्यूएंसी निर्वाचन क्षेत्र। A particular area from which all the voters living there choose their representative। निर्वाचन क्षेत्र का तात्पर्य एक निश्चित क्षेत्र से है जहां रहने वाले सभी मतदाता अपना प्रतिनिधि चुनते हैं। This could be, for example, a panchayat ward or an area that chooses an MLA। उदाहरण के लिए यह कोई पंचायत या वार्ड या वह क्षेत्र हो सकता है जो विधानसभा सदस्य चुनता है। मेजॉरिटी होता है बहुमत। दिस इज a situation when more than half the member in a group supports a decision
or an idea. बहुमत का आशय ऐसी स्थिति से होता है जब किसी समूह के आधे से अधिक संख्या में लोग किसी निर्णय या विचार से सहमत हों. दिस इज आल्सो कॉल्ड अ सिंपल मेजॉरिटी. इसे साधारण बहुमत भी कहा जाता है. ऑपोजिशन यानी विरोधी पक्ष. दिस रिफर्स टू इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स who are not members of the ruling party and who play the role of questioning government decision and action as well as raise new issue for consideration in the assembly. विरोधी पक्ष का तात्पर्य उन चुने हुए प्रतिनिधियों से है जो सत्ता पक्ष के सदस्य नहीं हैं और जिनकी भूमिका सरकारी निर्णयों और कार्यों पर प्रश्न उठाने और विधानसभा में विचार के लिए नए मुद्दे उठाने की होती है. प्रेस कॉन्फ्रेंस यानी प्रेस वार्ता. Press conference, a gathering of journalists from the media who are invited to hear about and ask question on particular issue and are then accepted to report on this to the large public. प्रेस वार्ता मीडिया से संबंधित पत्रकारों का ऐसा समूह जिसे किसी विषय पर अपना पक्ष बताने और उस पर प्रश्न पूछने के लिए आमंत्रित किया गया हो और उनसे अपेक्षा की जाती है कि वे मीडिया के माध्यम से इसके बारे में बड़े जनसमूह को बताएंगे. आइए एक बार और देख लेते हैं. ग्लोसरी का मतलब होता है शब्द संकलन या इसी को शब्दावली कहते हैं. कॉन्स्टिट्यूएंसी का मतलब होता है निर्वाचन क्षेत्र. कॉन्स्टिट्यूएंसी अ पर्टिकुलर एरिया फ्रॉम विच ऑल द वोटर्स लिविंग देयर चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव्स. निर्वाचन क्षेत्र का तात्पर्य एक निश्चित क्षेत्र से है जहां रहने वाले सभी मतदाता अपना प्रतिनिधि चुनते हैं. दिस कुड बी फॉर एग्जाम्पल अ पंचायत वार्ड और एन एरिया दैट द चूजन एन MLA. उदाहरण के लिए यह कोई पंचायत का वार्ड या वह क्षेत्र हो सकता है जो विधानसभा सदस्य चुनता है. मेजॉरिटी का मतलब होता है बहुमत. majority, this is a situation when more than half the member in a group supports a decision or an idea. बहुमत
का आशय ऐसी स्थिति से होता है जब किसी समूह के आधे से अधिक संख्या में लोग किसी निर्णय या विचार से सहमत हों। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड अ सिंपल मेजॉरिटी। इसे साधारण बहुमत भी कहा जाता है। ऑपोजिशन होता है विरोधी पक्ष। ऑपोजिशन में दिस रिफर टू इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स who are not members of the ruling party and who play the role of questioning government decision and action, as well as raise new issues for consideration in the assembly। विरोधी पक्ष से तात्पर्य उन चुने हुए प्रतिनिधियों से है जो सत्ता पक्ष के सदस्य नहीं हैं और जिनकी भूमिका सरकारी निर्णयों और कार्यों पर प्रश्न उठाने की है और विधानसभा में विचार के लिए नए मुद्दे उठाने की होती है। प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है प्रेस वार्ता। A gathering of journalists from the media who are invited to hear about and ask question on a particular issue and are then expected to report on this to the larger public। प्रेस वार्ता मीडिया से संबंधित पत्रकारों का एक समूह जिसे किसी विषय पर अपना पक्ष बताने और उस पर प्रश्न पूछने के लिए आमंत्रित किया गया हो। उनसे अपेक्षा की जाती है कि वे मीडिया के माध्यम से इसके बारे में बड़े जनसमूह को बताएंगे। थैंक यू।